اور شہادت پڑھتے وقت آپ کے جذبات کیا تھے؟ آپ نے اپنے دل میں کیا محسوس کیا؟ آپ کے ذہن میں کیا تھا؟ اس لمحے میرے دل میں ایک طرح کی گرم جوشی تھی، واقعی ایک پرجوش احساس، بھائی چارے کا احساس، کیونکہ خاص طور پر بہت سارے لوگ میرے پاس آئے، اور یہ وہ لمحہ تھا جب میں نے اپنی شہادت پڑھی، اور پھر مجھے اپنی پہلی نماز یاد ہے جو کہ میری پوری زندگی کا سب سے خوبصورت تجربہ تھا۔ پہلی بار جب میں نے خدا کے سامنے سجدہ کیا، اور جب میں نے سجدہ کیا تو خدا کی قسم میں سجدے سے اٹھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے کہا میں پوری زندگی اس لمحے کو بالکل نہیں بھولوں گا۔ یہ اس قسم کی خوشی ہے جسے آپ سڑکوں پر $50 میں خرید سکتے ہیں۔ وہ سفید پاؤڈر جسے آپ اپنی ناک سے سونگھتے ہیں، وہ تو کیمیکل ریئیکشن ہے، اور ایک دفعہ شہادت پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا تو خوشی کی یہ تلاش ختم ہو گئی، اور یہ اسلام سے پہلے اور بعد والے مارشل کے درمیان سب سے بڑا فرق ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زندگی میں رکاوٹوں یا مشکلات کا سامنا نہیں کرتے، لیکن یہ کہ آپ دل میں سکون محسوس کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اوکے میں ہینڈل کر سکتا ہوں۔ کچھ عیسائی ہیں جو کہتے ہیں جب میں دعا کرتا ہوں تو مجھے روحانیت اور خدا سے تعلق محسوس ہوتا ہے، مجھے کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایسے شخص یا لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گے؟ میں اس سے انکار نہیں کروں گا کہ آپ دوسرے مذاہب میں جذبات نہیں پا سکتے ہیں، لیکن دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، جذبات جو کہ آپ کسی بھی چیز سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ لوگ فٹ بال گیم دیکھ رہے ہیں، جیسے عالمی چیمپئن شپ تھی، تصور کریں کہ اسپینش لوگ اپنی ٹیم کو چیمپئن شپ جتتا دیکھ رہے ہیں، یہ ان کے جذبات ہیں، لیکن اس کا خدا یا کسی بھی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لہٰذا خود جذبات جو ہیں وہ کچھ زیادہ معنی نہیں رکھتے ہیں۔ اور نمبر دو، اہم بات یہ کہ مذہب کے حوالے سے یہ سچ ہونا چاہیے جو بھی آپ کو احساس کے طور پر دیتا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ کسی دوسرے مذہب سے خوش ہیں، میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن کیا یہ سچ ہے یا نہیں؟ ایسا ہے کہ سچائی آپ کی مرضی پر نہیں چلتی، خدا نے ہمیں کسی چیز کو سمجھنے کے لیے ذہن دیا ہے، تو آپ کے پاس کسی ایسی چیز پر یقین رکھنے کا عذر نہیں ہے جو آپ کے ذہن سے متصادم ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی قبول نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ میں اس پر یقین کرتا ہوں کیونکہ میں اسی طرح پیدا ہوا تھا، یا کیونکہ میرے والدین اس پر یقین رکھتے تھے۔ ہم خدا سے توقع نہیں کر سکتے کہ وہ اسے کسی عذر کے طور پر قبول کرے گا۔ بہت سے لوگ اپنے شہادت دینے کے لمحات بیان کرتے ہیں، جیسے میرے کندھوں سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا، میرا دل ہلکا ہو گیا۔ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا؟ ایسا ہی ہوا، بالکل۔ اور اب میں دوسروں کو یہ بتا رہا ہوں۔ جب میں کسی کو ہچکچاتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مجھے پتا ہے تم کیا محسوس کر رہے ہو، اور ابھی شہادت دینا آپ کے سر پر پہاڑ کی طرح لگتا ہے، لیکن میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ ایک بار جب آپ شہادت دیتے ہیں تو یہ پہاڑ غائب ہو جاتا ہے۔ آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے آپ کے کندھوں سے بوجھ اتر گیا ہے۔ شاید یہی ایک وجہ ہے کہ لوگ ہچکچاتے ہیں۔ آپ اپنے سر پہ ایک پہاڑ دیکھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو یہ قدم اٹھانا ہوگا۔ یہ ایسی ہے جیسے خدا آپ سے کہہ رہا ہے کہ اب بس کر ڈالو۔ یہ شروع میں مشکل لگتا ہے، لیکن آپ کو پہلا فیملی قدم اور تو دوستوں اٹھانا کا ہوگا۔ رد عمل آپ کو ایک کیسا قدم رہا؟ میرے پاس آنا ہے اور میں آپ کی طرف 10 قدم آؤں گا، لیکن پہلا قدم آپ کو اٹھانا ہوگا۔ کوئی زبردستی نہیں ہے، یہ صرف آپ کا فیصلہ ہے، لیکن ضرور سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے جب میں نے شہادت فیملی کے حوالے سے تقریباً 10 ماہ کی، میں نے جیسا کہ بتایا کہ میں 10 ماہ تک اپنے دل کو قائل کرتا رہا، لیکن پہلے قدم اٹھانے کی ہمت نہیں کی۔ ان 10 ماہ کے دوران میں نے اپنے بعض اوقات اسلام کے بارے میں قبول نہ کرنے کے بہانے بات نہیں تلاش کرنے کی کوشش کرنا۔ تقریباً 10 ماہ کہ میں اس پر کتابیں پڑھ رہا ہوں یا اپنے دوست سے بات چیت کر رہا ہوں، اور پھر اچانک یہ جنگ ختم ہو، پھر میں نے اسلام دوسری جنگوں کی طرح ہی ہے، اور شروع ختم ہونے پر اپنے والدین کو نہیں بتانا چاہتا تھا، اس طرح نہیں ہے کہ میں جانتا تھا کہ بڑا قصہ بن جائے گا، کیونکہ وہ تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ دل میں یہی محسوس، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو وہ 1995 کا آغاز تھا، جنوری 1995 کا، میرے خیال میں پہلا جمعہ تھا اس سال کا۔ اگر آپ کیلنڈر چیک کریں تو 1995 میں رمضان المبارک کا آغاز جنوری کے آخر میں ہوا، شاید 26 جنوری۔ اس کا مطلب یہ آپ کہہ سکتے ہیں 3 ہفتوں بعد۔ اور ظاہر ہے میں روزہ رکھنا چاہتا تھا، لیکن میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تھا۔ میں اپنی والدہ کو کیسے سمجھاتا کہ 30 دن تک میں آپ کے ساتھ لنچ نہیں کروں گا، پانی بھی نہیں پئیں گے۔ تو بس مجھے پتا تھا اگلے 3 ہفتوں میں مجھے والدین سے بات کرنی ہے، ورنہ میں کم از کم مزید 6 ماہ اس ششپنج میں رہتا، تو ان کو تیار کرنے کا وقت نہیں تھا اور فرار کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا میرے پاس۔ تو رمضان سے 4 دن پہلے میں نے کمرے میں دعا کی، اور پھر اس کے بعد میں نیچے چلا گیا۔ شام کے 8 بجے کا وقت تھا اور میرے والدین لیونگ روم میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ میں دروازے کے سامنے کھڑا تھا اور میں نے کہا یا اللہ، اے خدا اسے آسان بنا دے۔ چنانچہ میں نے دروازہ کھولا اور اپنے والدین سے کہا کہ مام ڈیڈ، میرے پاس آپ کے لیے ایک خبر ہے۔
उन्होंने मुझे ऐसे सवालिया नजरों से देखा और कहा कि क्या हुआ, कौन सी खबर? तो मैंने झट से उन्हें ये बता दिया कि मैं मुसलमान हो गया हूं। और फिर मुझे अपने वालिद का रद्द अमल याद है। उनका वो पहला जुमला, उन्होंने कहा कि मुसलमान, वो तो सब दहशतगर्द हैं। ये उनका पहला रद्द अमल था। और ये 1995 की बात है, यहां तक कि 9/11 से भी पहले। 1995, मुसलमान, वो तो सब दहशतगर्द हैं। पहला जुमला यही था। मेरी वालिदा तो बस हिस्टेरिकल हो गई। मतलब उस शाम वो वाकई अपने हवास खो बैठी, क्योंकि शायद वो बहुत ज्यादा खौफजदा थी, बहुत ही ज्यादा। बल्कि मेरे मामू ने बरसों बाद फिर मुझे बताया कि मेरी वालिदा ने उस रात उन्हें फोन किया था। सिर्फ वो अपने भाई से बात करना चाहती थी। और मामू ने बताया मुझे कि रात का वक्त था, 10 या 11 बजे का। उन्होंने फोन उठाया और उन्होंने मेरी माँ की आवाज सुनी। उन्होंने मार्शल को छीन लिया, उन्होंने मार्शल को छीन लिया। ये पहली बात थी उनकी, ये वो पहला जुमला था, पहली बात थी जो उन्होंने सुनी, मेरी माँ की आवाज सुनी। उन्होंने मार्शल को छीन लिया, मार्शल को छीन लिया। उन्होंने कहा क्या हुआ, किसने छीन लिया, क्या हुआ? मुझे यकीन है कि उन्हें खुद भी नहीं पता था कि उस रात उन्होंने क्या कहा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मेरी तरफ से ये एक बहुत बड़ी गलती थी कि मैंने उनसे पूरे 10 माह के दौरान इस्लाम की कोई बात नहीं की। क्या मस्बत असरात मुरतब हुए? क्या कोई जर्मन शख्स आपके पास आया और कहा मुझे नहीं मालूम था कि इस्लाम इस तरह है, या अब मेरे ख्यालात बदल गए हैं? क्या आपकी ऐसी गुफ्तगू हुई? जी बिल्कुल। स्कूल में बहुत से मुझसे मामूल के सवालात पूछते थे। अब तुम शादी कर सकते हो? अच्छा, तुम इसलिए मुसलमान हुए ताकि 4 शादियां रचा सको। अब मैं समझा तुम अब 4 बीवियां रख सकते हो। ये पहले नंबर पर था। दूसरे नंबर पे हर वक्त जिहाद, हर वक्त यही पूछते थे, मुकद्दस जंग। कुछ लोग पूछते थे क्या तुम तमाम काफिरों को मारने जा रहे हो, क्या तुम हमारी जुबानें काटोगे, ये ऐसी चीजें। ऐसे इमेज लेके बैठे हुए थे। उन्हें लगता है मुसलमान सिर्फ वही है जिसके हाथ में तलवार है। अच्छा। हाँ, तो बस इसी किस्म के सवालात पूछते थे। और जब आपने हयात तैयबा के बारे में जाना और सीखा तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस बात से ज्यादा मुतासिर हुए? मैं सबसे ज्यादा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को सराहता हूँ। जब मैं पढ़ता हूँ कि उन्होंने नबी करीम के साथ कैसा सलूक किया, फिर उन्होंने कई जंगें लड़ी और कई लड़ाइयाँ लड़ी, और फिर आप मक्का वापस चले आते हैं और फातेह बनकर मक्का में दाखिल होते हैं। और मैंने इसका मुआजना तारीख की उन तमाम दीगर मिसालों से किया कि जब किसी के साथ इस तरह से सलूक किया गया और वो वापस आया और फातेह कहलाया, तब वो लोगों को किस तरह ट्रीट करता है। जबकि आप मक्का में दाखिल होते हैं और लोग आपके आसपास जमा हो रहे हैं, आपने उनसे पूछा आपको क्या लगता है कि मैं आपके साथ क्या करने वाला हूं, और वो कहते हैं कि हम आपको जानते हैं, आपसे बेहतरीन सलूक की तवक्को करते हैं। और फिर आपने फरमाया ठीक है, तुम सब जा सकते हो। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह ये इंसान के लिए आसान नहीं है। हकीकी जिंदगी में कितनी बार अगर हम पर स्ट्रीट पर हमला किया गया हो, जुबानी या जिस्मानी तौर पर, हम अपना दिफा करेंगे, ये एक फितरी रद्द-ए-अमल है। लेकिन ये सब हजम करना अल्लाह के पैगाम की खातिर आसान नहीं है, क्योंकि आप बने नौ इंसान के लिए मिसाल हैं। आपने अपनी अना के आगे हार नहीं मानी। क्या हम ये कर सकते हैं? मैं इस्लाम की ऐसी मिसाल तो पेश नहीं कर सकता। मैं तो एक आम सा मुसलमान हूं, लेकिन वो इस पैगाम के नुमाइंदे और रसूल हैं। उन्होंने जिंदगी के हर लम्हे के बारे में गौर फिक्र से काम लिया और वो उसमें कामयाब रहे। उन्होंने अपनी अना को कंट्रोल किया। यहां तक कि जब आपने जंग लड़ी तो वो भी अना की खातिर नहीं लड़ी। ये इसलिए नहीं था कि मैं इंतकामी कार्रवाई करना चाहता हूं या कुछ और, लेकिन ये उस पैगाम की खातिर था। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ्त का मद्दा हूं। यही। अगर आपको हयात तैयबा देखने का मौका मिले तो कौन सा दिन देखना पसंद करेंगे? उनकी जिंदगी का आखिरी दिन। मुझे एक चीज याद है जो मैंने सीरत में पढ़ी थी, ये कि उस आखिरी दिन जब सहाबा मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, आप अपने हुजरे में थे क्योंकि नमाज में शिरकत करने की ताकत नहीं थी, और आपने अपने हुजरे का पर्दा उठाया, नमाज में खड़े सहाबा की तरफ देखने लगे और मुस्कुराए। आप मुस्कुराए क्योंकि अब आप इस दुनिया से सुकून से रुखसत हो सकते थे। वो नामुमकिन मकसद जो 23 साल पहले शुरू हुआ था, आपने उसे मुकम्मल कर दिया। आपने कर दिखाया। जरा सोचिए, अल्लाह ने आपको कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। पहली वही, जिसके बाद आपको अपने लोगों के पास जाना था। उस वक्त एक एक के पास जाकर उन्हें यूं कायल करना था, बताना था कि देखो मैं खुदा का रसूल हूं, मेरे पास एक फरिश्ता आया है। अगर आप मेरी पैरवी नहीं करते तो जहन्नम की आग में जा सकते हैं। कितना अजीबोगरीब लगता है। जरा सोचिए कि आपको अपने पड़ोसी को यह बताना है, वो आपको दीवाना समझेगा जैसे मक्का के लोगों ने समझा। ये क्रेजी स्टोरी है। ऐसे ही अगर आप इसे खास जाविये से देखें तो ये वाकई एक क्रेजी स्टोरी है। और भी बहुत सारी रुकावटें थी अपनी जिंदगी के बहुत सारे लम्हात में। उन्होंने सोचा होगा कि अब मैं क्या करूं। मुझे वो दिन याद है जब आप ताइफ तशरीफ लाए तो लोगों ने आपसे क्या सलूक किया, और जब हम उस दुआ को पढ़ते हैं जो कि आपने वहां के लोगों के लिए ऐसे सलूक के बाद की, तो हमें ऐसे शख्स की झलक नजर आती है जिसके आगे एक मकसद है और सारे दरवाजे बंद है।
जो खुदा से कह रहा है, क्या करूं मैं, कहां जाऊं? क्या मैं मक्का वापस जा सकता हूं? मैं ताइफ नहीं जा सकता। मैं यहां बैठा हूं, मुझे कहां जाना है, क्या करना है? और इस तरह के आपकी जिंदगी में बेशुमार वाकयात हैं। अब आखिरी दिन की बात करते हैं। अब अपने साथियों को नमाज में खड़ा देख रहे हैं। मकसद पूरा हो चुका, मकसद पूरा हो चुका था। आप मुस्कुराए। क्या आपके इर्द गिर्द आपसे इंस्पायर होकर कोई मुसलमान हुआ है? सिर्फ मेरी बीवी। मैंने इस्लाम कबूल किया और चंद माह बाद उसने भी मुझे फॉलो किया और फिर हमने शादी की। यही वजह थी कि मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई। जब आपने सुना कि वो मुसलमान बनने के लिए तैयार है तो उन एहसासात की वजाहत करें। हमेशा मैंने इसकी ख्वाहिश की थी। वो वही थी जिसके साथ मैं अपनी फैमिली बनाना चाहता था। जाहिर है मुसलमान औरत के साथ मैं घर बसाना चाहता था। तो मेरी यही ख्वाहिश थी कि वो इस्लाम कबूल करे और मैंने बहुत दुआ की उसके लिए। मुझे वैसी तवक्को नहीं थी कि वो मुसलमान हो जाएगी, लेकिन आखिरकार जैसा कि मैंने कहा, ये एक संजीदा मसला है। ये इस बात पर मुनहसिर है कि क्या आप इसे संजीदगी से लेने के लिए तैयार हैं। हम बात कर रहे हैं इटर्निटी के बारे में। मैंने कभी कभी लोगों को यही मिसाल दी कि आखिर किस चीज के बारे में ज्यादा फिक्र करनी चाहिए, 80 साल के मुस्तकबिल की या 80 अरब साल के मुस्तकबिल की। और इससे लोग गौर करते हैं। हाँ, हमारे पास शायद 80 या 90 साल हैं, शायद 50, हम नहीं जानते, लेकिन ये बहुत ही महदूद है। उसके बाद अब्दियत शुरू होती है। ये जिंदगी की सबसे संजीदा बात है। मुझे इसका एहसास हुआ और उसे भी एहसास हुआ। तो उन्होंने कैसे आकर आपको बताया? क्या आप हमें बता सकते हैं? हम अपने पाकिस्तानी दोस्त की तरफ गए। उस वक्त वो एक तालिब इल्म था। मैंने अचानक उसे देखा। आपने नोटिस किया होगा कि जब किसी को कोई अहम ऐलान करना होता है, उसी तरह से वो भी ऐसे ही नर्वस सी खड़ी थी, बैठ नहीं रही थी। मैं और मेरे दोस्त वहीं बैठे हुए थे और वो दरवाजे पर खड़ी थी और ये कहा, ओके, अब आगे क्या होगा? और फिर वो मुस्कुराई और कहा कि आज मैं यहाँ आपको इन्फॉर्म करने आई हूँ कि मैं मुसलमान बनना चाहती हूँ। मैं और मेरे दोस्त एक दूसरे को देखने लगे और मैंने कहा, उफ, वाह। ये वो लम्हा था जब उसने कलमा शहादत पढ़ा, वहां हम दोनों के बिल्कुल सामने। और ये वाकई जिंदगी के सबसे ज्यादा खुशगवार लम्हात में से एक था। मुसलमान बनने के बाद सबसे बड़े किस चैलेंज का सामना करना पड़ा? सबसे बड़ा चैलेंज मुसलमान बनने के बाद दरअसल खुद को एक बिल्कुल अलग ही कल्चर का आदी बनाना था। मैं मस्जिद में था जहां मैंने नमाज में शिरकत की। वो मस्जिद तकरीबन 2,80,000 लोगों के शहर में वाक़ई थी और मेरे ख्याल में वहां 3-4 और भी जर्मन कॉन्वर्ट्स थे। और वहां मुझे वाकई उस वक्त अपना आप अजनबी लगा। हाँ, ऐसा है, ये कभी कभी मुश्किल लगता है। आपने अपने इस एहसास पर किस तरह काबू पाया और किस तरह मैनेज किया? एक चीज थी जिसने इसे आसान बना दिया। इस्लामी कल्चर की एक चीज मुझे वाकई बहुत पसंद है और वो है सभी भाइयों को खुशामदीद कहना। जब मैं मस्जिद आया और भाइयों ने सुना कि मैं मुसलमान हूं तो हर एक ने मदद करने की कोशिश की। अगर आपका कोई सवाल है तो आ जाओ, मेरे साथ बैठो, और अगर आप मेरे घर पर जाना चाहते हो, सोना चाहते हो तो खुशामदीद। मतलब ये कि एक जर्मन के लिए ये गैर मामूली बात है। यूं कहने के वो बहुत सखी लोग थे और ये एक आसानी पैदा करने वाला खुश आइंद कल्चर था। बहुत से लोग समझते हैं कि उन्हें मुसलमान बनने के लिए एक अरबी बनना पड़ेगा, अपना नाम और सारा कल्चर तब्दील करना होगा। क्या आपको भी ये खदशात थे और आपने इन चीजों पर कैसे काबू पा लिया? दरअसल मैं भी इसी तासुर में था कि जब आप मुसलमान बन जाते हैं तो आप भी अरब बन जाते हैं। आप ये कहते तो नहीं है, लेकिन ये आपके अंदर का एहसास होता है। आपको लगता है कि आपको अपना पहनावा बदलना होगा, आपको अपना नाम बदलना होगा। और यहाँ तक कि बहुत से लोग कहते हैं उस दिन से लेकर अब तक ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, आपका इस्लामी नाम क्या है? मैं कहता हूँ मार्शल। नहीं, इस्लामी नाम मार्शल है। ओह नहीं, अभी तक नाम नहीं बदला। ये बहुत ही अजीब बात है। वैसे भी इसके अलावा ये इस्लाम के बारे में एक गलत सा इमेज देता है, क्योंकि दरअसल इस्लाम जब फैला तो इसने मुख्तलिफ सकाफतों को कबूल किया, सिवाय उन हिस्सों के जिसकी हमारे मजहब में इजाजत नहीं है। मिसाल के तौर पर यह फैला जहां के कल्चर में शराब पीना मामूल था। जाहिर है शराब पीना कबूल नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके अलावा जिस तरह से वो खाते हैं, जिस तरह से लिबास पहनते हैं, अगर इस्लाम की हदूद में है तो काबिल कबूल है और खुशाइंद है। बसूरत दीगर इस्लाम इस तरह हरगिज न फैलता। जरा सोचें, आप अरब की सहरा की सकाफत को पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि ये खास तौर पर मगरिब में एक रुकावट होती अगर आप लोगों को ये तासुर देते हैं कि आप अपने कल्चर को बदल कर ही इस मजहब को अपना सकते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अपने वालिद के बारे में सोच रहा था। मेरे वालिद की उम्र अब 74 साल है। वो कभी कबूल नहीं करेंगे अरब कल्चर को, लेकिन वो उस अकीदे को कबूल कर सकते हैं कि ये खुदा और सिर्फ उसी की इबादत करनी है और बस यही काफी है। हम लोगों को अरबी या तुर्की या कुछ और नहीं बनाना चाहते।
हम उम्मीद करते हैं कि वो मुसलमान बने। क्या आपको किसी गैर मामूली वाक़ये का तजुर्बा हुआ जब आपको लगा कि आपका अल्लाह के साथ खुसूसी ताल्लुक है? ये वाकई गैर मामूली लम्हात में से एक था जब मैंने पहला उम्रा किया 1997 के आखिर में। उम्रा जिसे आप काबे की ज़ियारत कहते हैं। मक्का में? जी मक्का। मक्का जाते हैं और अल्लाह के घर में दाखिल होते हैं। कभी कभी आपकी जिंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं, हमें यकीन है कि खुदा की हमारी मुकम्मल जिंदगी पर निगाह है, लेकिन कभी आपके पास ऐसे लम्हात होते हैं जहां आपको लगता है कि वो आपका हाथ थाम कर आपको आपकी जिंदगी में एक बहुत ही खुसूसी तजुर्बे से रोशनास करने के लिए रहनुमाई कर रहा है। और जब मैं पहली बार मक्का गया, उफ, मैं वो कभी नहीं भूलूंगा। क्या आप काबे को देखकर आपदीदा हुए या आपको कैसा लगा? मक्का का पहला सफर वो चीज थी जो मैं बयान नहीं कर सकता। सारा वक्त रोता रहा मैं वहां। सिर्फ कभी कभी मैंने आंसू रोकने की कोशिश की। मैं उस वक्त वहां दुआ करना चाहता था या कुछ और करना चाहता था, लेकिन मैं रोता रहा सारा वक्त। जब मैं पहले सफर के दौरान मक्का में था, मैंने 5 बार उम्रा किया, बस आया और गया। मुझे लग रहा था कि ये काफी नहीं है। बस मैंने टैक्सी ली और मैंने ये सब खुद ही किया। ये मेरा मक्का का पहला सफर था और मेरे पास सिर्फ एक किताबचा था, मतलब ये कि चेक करने के लिए क्या करना है। मैं वहां उस लम्हे से बहुत लुत्फ अंदोज हुआ। हाँ, मैं कभी नहीं भूलूंगा, खास तौर पर मक्का में जैसे सफर खत्म हुआ। ये पूरा सफर बहुत खूबसूरत था। अब मुझे जब भी याद आता है, कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जब आप खुद को उड़ता हुआ महसूस करते हैं। और फिर मैं एक बात समझ गया। मैं ये बात समझ गया कि इस्लाम में रोजाना 5 नमाजों का हुक्म क्यों है। हम कभी कभी सोचते हैं कि खुदा को हमारी नमाजों की क्या जरूरत है, उसे आपकी नमाजों की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आप अपनी रूह को भूखा मार देंगे। यहाँ आपकी रूह भी है और उसे आपके जिस्म की तरह जिंदा रहने के लिए खुराक की जरूरत है। लेकिन ये खुराक कोई गोश्त, जूस या पानी वगैरह नहीं है। असल में इसे कुछ और चाहिए। इसे खुदा से ताल्लुक की जरूरत है। और रोजाना 5 नमाजें ये आपकी रूह की खुराक है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो रूह भूख से मर जाएगी। और उन लम्हों में मैंने यही महसूस किया, खासतौर पर जब मैं मक्का में था। ऐसे जैसे आपको फरिश्तों की मौजूदगी महसूस होती है, और यही कुछ मैंने मक्का में महसूस किया। और उसी सरजमीन पर कदम रखना कैसा लगा जहां कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदम रखा? देखें, कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके चारों तरफ हैं। आप उन छोटी छोटी पहाड़ियों को देखते हैं, सफा और मरवा को देखते हैं। जहां हम मक्का में होते हैं तो वहां जाते हैं, आपको वो लम्हा याद आता है कि जब हमारे आका लोगों से इस्लाम मुतारफ करवा रहे थे और लोगों ने उस पर क्या रद्दमल जाहिर किया। ये ऐसे ही है जैसे आप इस्लामी तारीख में जिंदा हो जाए। इस्लाम आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी तब्दीली क्या लाया? इस्लाम से पहले और इस्लाम के बाद वाले मार्सिल में क्या फर्क है? बड़ी सीधी सी बात है। आपके दिल में सुकून और मिठास आ जाती है जब आप अपना मकसद जान लेते हैं। और सबसे बड़ी तब्दीली यही है। आखिर में अगर आपको दुनिया के तमाम गैर मुस्लिमों से बात करने का मौका मिले तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे, अगर आपको कुछ वक्त मिले? इस दुनिया के तमाम गैर मुस्लिमों से कुछ कहने के लिए मैं कुरान की एक आयत का हवाला देना चाहूंगा। तो क्या तुम ये समझते हो कि हमने तुम्हें बेकार बनाया और तुम हमारी तरफ लौटाए नहीं जाओगे? अगर आप सिर्फ अपनी जात में झांकें तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि खुदा एक है और जिसने ये पूरी कायनात बस यूं ही नहीं बना दी, बल्कि कोई ना कोई वजह है इसके पीछे। जाओ और वो वजह तलाश करो कि इस कायनात के पीछे क्या राज है। भाई मार्शल क्रिस, आपके मुखलिस जवाबात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको महफूज रखे और आखिरी सांस तक आपको इस्लाम पर कायम रखे। हम सबको मुझे शुक्रिया अदा करना है इतने अच्छे इंटरव्यू के लिए। और मुस्तकबिल में फिर आपसे मिलने की उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह। जरूर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।